हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी? सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे। फार्माकोग्नोसी रिप्रेजेंट्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेडिसिन्स derived from natural sources. Etymology, word origin, derived from two Greek words, pharmakon, a drug यानी दवा, zignoso, to acquire knowledge of, MTLB, ज्ञान प्राप्त करना. Definition: Pharmacognosy is the branch of biosciences which deals with the study of crude drugs obtained from plants, animals and mineral sources. आसान भाषा में समझे तो फार्माकोग्नोसी मतलब नेचुरल चीज़ों से दवा बनाने की पढ़ाई। अब सारी डिफाइनेशन को वर्ड टू वर्ड समझाते जापूस क्रूड ड्रग। इट इज़ एनी नेचुरली occurring unrefined substance derived from organic or inorganic sources. क्रूड ड्रग मतलब वो रॉ मटेरियल जो हमने डायरेक्ट नेचर से लिया है और अभी तक उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं किया है। 2. सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, दवाओं के मुख्य स्रोत। सोर्स एग्जाम्पल: थेरेप्यूटिक यूज प्लांट सोर्स, डिजिटलिस यूज्ड इन हार्ट फेलियर। एनिमल सोर्स: इंसुलिन यूज्ड इन डायबिटीज मिनरल सोर्स, कॉलिन यूज्ड इन स्किन इश्यूज / डायरिया मरीन सोर्स, corals / sponges used in cancer and inflammation, microbial source penicillin used as an antibiotic. आसान भाषा में समझे तो हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग नेचुरल जगहों से आती हैं। इनके मेन सोर्सेज ये हैं: थेरेप्यूटिक यूज, इलाज उपयोग, प्लांट सोर्स, पौधों से डिजिटलिस, इसका इस्तेमाल हार्ट फेलियर के मरीजों के लिए किया जाता है, दिल की धड़कन को कंट्रोल करने में। एनिमल सोर्स, जानवरों से, इंसुलिन, इसका उपयोग डायबिटीज शुगर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मिनरल सोर्स, खनिजों से। 3. डिटेल्ड हिस्ट्री, इतिहास का सफर। द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर eras. A. Ancient period, प्राचीन काल. Babylonians, recorded medicinal recipes on clay tablets. Egyptians, 1550 BC, wrote the Ebers Papyrus, a 60-foot-long document containing over 800 medicinal formulas. India, Ayurveda, known as the cradle of medicinal plants. Charaka Samhita, Acharya Charaka classified medicinal plants into 50 groups. Sushruta Samhita, focused on surgery and the effects of toxic plants. B. The Greek and Roman era, Unani or Roman Kal. Hippocrates, 460 Isa Purv, known as the father of medicine. He separated medicine from superstition. Theophrastus, 370 Isa Purv, known as the father of botany. Dioscorides, 1st century AD, wrote the legendary book De Materia Medica. He described over 600 plants and is often called the father of pharmacognosy. Galen, 131 to 200 AD, developed methods for extracting plant constituents. These preparations are still called galenicals. See origin of the name, naam ki utpatti. The term pharmacognosy was introduced in the 19th century. 1811, Johann Adam Schmidt first used the term in his book Lehrbuch der Materia Medica. 1815, C. A. Seidler popularized the term in his thesis titled Analecta Pharmacognostica. D. Modern era, Adhunik Yug. Today, we focus on the isolation of active principles, for example, morphine from opium. Advanced techniques like DNA fingerprinting, plant tissue culture, and phytochemistry are used to ensure drug purity. Quick revision. Sources of drugs: plant source, digitalis; animal source, insulin mineral source; kaolin marine source; sponges microbial source; penicillin. Question for students: फार्माकोग्नोसी वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है? A. ग्रीक, B. लैटिन, C. इंग्लिश। आंसर कमेंट में बताइए। Question for students: Which drug is obtained from microbial source? A. digitalis, B. penicillin, C. insulin, D. kaolin. Comment your answer. Hello friends, welcome to our channel. आज हम फार्माकोग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये टॉपिक डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ड्रग डिस्कवरी फार्माकोग्नोसी का सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप है। ड्रग डिस्कवरी, नेचुरल सोर्सेज जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नई मेडिसिन खोजी जाती हैं। एग्जाम्पल: मॉर्फिन, ओपियम प्लांट से क्वाइनाइन, सिंचोना प्लांट से। इसीलिए फार्माकोग्नोसी फ्यूचर मेडिसिन की डिस्कवरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स फार्माकोग्नोसी, सिंथेटिक ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स की डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कई एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल्स:
पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं। हर्बल मेडिसिन्स, आजकल हर्बल मेडिसिन्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। फार्माकोग्नोसी हर्बल ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल में मदद करता है। एग्जाम्पल्स तुलसी, नीम, एलोवेरा नोवेल मेडिसिन्स। मेडिसिनल प्लांट से नए केमिकल कंपाउंड्स खोजे जाते हैं जिन्हें नोवेल मेडिसिन्स कहा जाता है। रिसर्च के माध्यम से इन कंपाउंड्स को फ्यूचर मेडिसिन्स के रूप में डेवलप किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स फार्माकोग्नोसी में मेडिसिनल प्लांट्स का डिटेल्ड स्टडी किया जाता है। इसमें शामिल है कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, जिंजर, अश्वगंधा आइडेंटिफिकेशन, प्योरीफाइड कंपाउंड की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पता करने की प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। मेथड्स क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल टेस्ट्स। कंक्लूजन इस प्रकार फार्माकोग्नोसी का स्कोप बहुत वाइड है। इसमें शामिल हैं ड्रग डिस्कवरी, सिंथेटिक ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स, हर्बल मेडिसिन्स, नोवेल मेडिसिन्स, मेडिसिनल प्लांट्स, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। ऑन Pharmacognosy mainly deals with A. Synthetic chemicals, B. Drugs obtained from natural sources, C. Radioactive drugs, D. Surgical instruments. Answer, comment me karo. 2. The word pharmacognosy is derived from A. Latin words, B. Greek words, C. English words, D. French words. Answer, comment karo. 3. Which of the following is a natural source of drugs? A. Plants, B. Animals, C. Microorganisms, D. All of these. Answer, comment karo. 4. Which antibiotic is obtained from microorganisms? A. Penicillin, B. Streptomycin, C. Tetracycline, D. All of these. Answer, comment me. BTAO5. Pharmacognosy helps in A. Identification of crude drugs, B. Isolation of active compounds, C. Discovery of new medicines, D. All of these. Answer, comment karo. 6. Drugs obtained from plants are called A. Synthetic drugs, B. Herbal drugs, C. Chemical drugs, D. Mineral drugs. Answer, comment karo. 7. Which of the following is related to the scope of pharmacognosy? A. Drug discovery, B. Herbal medicines, C. Medicinal plants, D. All of these. Answer, comment karo. 8. The study of medicinal plants comes under A. Pharmacology, B. Pharmacognosy, C. Pathology, D. Anatomy. Answer, comment karo. नेक्स्ट टॉपिक हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चैप्टर 2 हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोग्नोसी में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स डी फार्मा पढ़ेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखो स्टूडेंट्स। फार्माकोग्नोसी में हम मेनली नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाली ड्रग्स पढ़ते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स। अब प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में हजारों क्रूड ड्रग्स हैं। अगर हम इन्हें बिना किसी ऑर्डर के पढ़ेंगे तो याद रखना और समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट्स ने ड्रग्स को कुछ बेसिस के अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कहते हैं। डिफिनीशन, एग्जाम लैंग्वेज, ड्रग्स को उनकी सिमिलैरिटी के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कहलाता है। फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स को मुख्यतः 6 मेथड्स से क्लासिफाई किया जाता है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक मेथड को डिटेल में समझते हैं। एक, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले समझो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इस मेथड में ड्रग्स को अल्फाबेट ABCD के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल A, अकेसिया B, बेंजोइन C, सिंचोना D, डिजिटालिस। इस मेथड का यूज अक्सर फार्माकोपिया बुक्स में होता है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। एडवांटेजेस, बहुत इजी मेथड, ड्रग को जल्दी सर्च कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, ड्रग का सोर्स या केमिकल नेचर नहीं पता चलता, इसीलिए ये मेथड स्टडी के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं माना जाता। 2, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब दूसरा मेथड है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग्स को प्लांट टैक्सोनॉमी के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, मतलब प्लांट फैमिली, जीनस, स्पीसीज के अकॉर्डिंग ड्रग्स को अरेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, सोलानासिए फैमिली इस फैमिली के प्लांट्स हैं। बेलाडोना, डेटूरा, हाइसोसियामस, इन सभी प्लांट्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज और केमिकल्स मिलते हैं। एडवांटेज, इस मेथड से हमें प्लांट्स के बायोलॉजिकल रिलेशनशिप का पता चलता है। डिसएडवांटेज, लेकिन इस मेथड में ड्रग का मेडिसिनल यूज या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्लियरली नहीं मिलते। 3, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आती है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
इस मेथड में ड्रग्स को प्लांट के पार्ट के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, मतलब प्लांट का कौन सा हिस्सा ड्रग के रूप में यूज हो रहा है। यह क्लासिफिकेशन फार्माकोग्नोसी में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजफुल मानी जाती है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दो प्रकार की होती है। एक, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वे ड्रग्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई देता है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पर उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एग्जाम्पल्स लीफ, सेन्ना रूट, राओवल्फिया बार्क, सिनेमन फ्लावर, क्लोव सीड, नक्स वोमिका। दो, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वे ड्रग्स होती हैं जिनका डेफिनेट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ये यूजुअली प्लांट से एक्सुडेट्स, सिक्रेशंस के रूप में मिलती हैं। एग्जाम्पल्स गाम, एरो, एकेशिया, लैटेक्स, एरो ओपियम रीजन, एरो कोलोफनी जेल, एरो एलोचार। केमिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। इस मेथड में ड्रग्स को उनके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, मतलब ड्रग में कौन सा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, एट्रोपाइन, क्वाइनाइन, ग्लाइकोसाइड्स, डिजिटालिस, टैनिन्स, कैटेचू वोलेटाइल ऑयल्स, क्लोव ऑयल, पेपरमिंट ऑयल। एडवांटेज, ये मेथड बहुत यूजफुल है क्योंकि ड्रग की एक्टिविटी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करती है। 5, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब समझते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस मेथड में ड्रग्स को उनके एक्शन ऑन बॉडी के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, मतलब ड्रग शरीर में क्या इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल्स लैक्सेटिव्स, पेट साफ करने वाली, सेन्ना कैस्टर ऑयल एनाल्जेसिक्स, पेन रिलीफ, ओपियम एंटी मलेरियल ड्रग्स, सिंचोना कार्डियोटोनिक ड्रग्स, डिजिटलिस। इस मेथड का यूज मेडिसिन प्रैक्टिस और डॉक्टर्स द्वारा ज्यादा किया जाता है। 6, केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब आखिरी मेथड है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें दो चीजें कंबाइन होती हैं, टैक्सोनॉमी, प्लांट फैमिली, केमिस्ट्री, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब प्लांट फैमिली और केमिकल कंपाउंड्स के रिलेशन के आधार पर ड्रग्स क्लासिफाई की जाती है। एग्जाम्पल सोलानासिए फैमिली के प्लांट्स में अक्सर एल्कलॉइड्स मिलते हैं, जैसे एट्रोपिन, हायोस्कैमिन। इसलिए यह मेथड मॉडर्न फार्माकोग्नोसी में इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्विक रिवीजन, एग्जाम ट्रिक। स्टूडेंट्स, एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो ऐसे हेडिंग्स लिखना: अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स जरूर लिखना। एक कुछ क्वेश्चंस हो जाए। क्यूमन, ड्रग्स को उनकी सिमिलैरिटी के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। ए, आइडेंटिफिकेशन, बी, क्लासिफिकेशन, सी, एक्सट्रैक्शन, डी, आइसोलेशन। आंसर बी, क्लासिफिकेशन। Q2 फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के कितने मेन मेथड्स होते हैं। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आंसर सी 6, डी फार्मा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, और इसमें से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, और इसको हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। एडल्टरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सबसे पहले आता है adulteration of crude drugs. Definition: adulteration is defined as adding or substitution of spurious, inferior, defective, useless or harmful substances with genuine drugs. Simple language में ओरिजिनल ड्रग में मिलावट कर देना या उसको रिप्लेस कर देना एडल्टरेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ एडल्टरेशन। एडल्टरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक अनइंटेंशनल एडल्टरेशन, दो इंटेंशनल एडल्टरेशन। एक अनइंटेंशनल एडल्टरेशन ये अननोनली होता है, गलती से। इसके एग्जाम्पल्स: नेम कन्फ्यूजन, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, सिमिलैरिटी इन कलर, केयरलेस कलेक्शन, मतलब नॉलेज की कमी या मिस्टेक की वजह से एडल्टरेशन हो जाता है। दो, इंटेंशनल एडल्टरेशन, ये डिलिबरेटली किया जाता है, जानबूझकर। टाइप्स: आ, एडल्टरेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल पैराफिन वैक्स को येलो कलर देकर बीज वैक्स की जगह यूज करना बे एडल्टरेशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जाम्पल क्लोव सी substance superficially similar but inferior. Example Japan wax instead of beeswax, papaya seeds in black pepper. D, using vegetative part of same plant. Example clove E, using powder form F, using toxic materials. Example limestone pieces in Asafoetida. Evaluation of crude drugs. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, evaluation of crude drugs. Definition: Evaluation means confirmation of identity, determination of quality and purity, and detection of adulteration. Simple: ड्रग की आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्यूरिटी चेक करना। मेथड्स ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। मेथड्स होते हैं 1 ऑर्गेनोलेप्टिक मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, 2 माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, 3 फिजिकल इवेल्युएशन, 4 केमिकल इवेल्युएशन, 5 बायोलॉजिकल इवेल्युएशन।
एक ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, इस मेथड में हम सेंसेस यूज करते हैं, कलर, ओडर, टेस्ट, शेप, साइज। इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता, सेंस ऑर्गन से एनालिसिस होता है। दो, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, इस मेथड में माइक्रोस्कोप का यूज होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स का डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाता है। इस मेथड में सेल्यूलर स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजिकल फीचर स्टडी किए जाते हैं। मैं पर्पज, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ड्रग के अंदर के स्ट्रक्चर को देखना ताकि उसकी आइडेंटिटी और प्योरिटी कंफर्म हो सके। इंपॉर्टेंट फीचर्स, स्टडीड 1 लीफ कॉन्स्टेंट्स। लीफ कॉन्स्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आते हैं पैलिसेड रेशियो, वेन नंबर, वेन टर्मिनेशन, स्टोमेटल नंबर, ये सब ड्रग की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। 2, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? ये स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ पर, इनके साथ किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 3, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स को प्लांट हेयर्स भी कहते हैं। ये लीफ या स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं, ड्रग की आइडेंटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 4, हाइडाथोडीज। हाइडाथोडीज क्या होते हैं? ये वाटर सिक्रीशन या अब्जॉर्प्शन के ऑर्गन्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम ट्रिक एस, माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन बराबर सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्लस हिस्टोलॉजिकल फीचर्स का स्टडी। 3, फिजिकल इवेल्युएशन। नेक्स्ट मेथड है फिजिकल इवेल्युएशन। फिजिकल इवेल्युएशन का यूज प्योर ड्रग्स को डिटरमिन करने के लिए होता है। इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ए, मॉइस्चर कंटेंट। प्योर ड्रग में मॉइस्चर लिमिटेड होता है, इसको चेक करने के लिए ड्रग को 105 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। बी, विस्कोसिटी, लिक्विड ड्रग की विस्कोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। सी, मेल्टिंग पॉइंट, प्योर ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, इससे प्यूरिटी पता चलती है। कोटा, सोल्युबिलिटी, ड्रग्स पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, इससे एडल्ट्रेशन डिटेक्ट किया जा सकता है। ये ऐश वैल्यू, ड्रग को जलाने के बाद जो रेसिड्यू बचता है उससे ऐश वैल्यू कहते हैं। एपब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है, इससे ड्रग की आइडेंटिटी चेक होती है। 4, नेक्स्ट मेथड है केमिकल इवेल्युएशन। इसमें केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इंपॉर्टेंट टेस्ट्स, एल्कलॉइड्स, मेयर्स टेस्ट, ग्लाइकोसाइड स्केलर, क्लियानी टेस्ट, टेनिन्स, जिलेटिन टेस्ट, टर्पिनॉइड्स, नॉलर्स टेस्ट। 5, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। लास्ट मेथड है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। जब अदर मेथड से प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता तब बायोलॉजिकल मेथड यूज किया जाता है। इसमें ड्रग्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है, इसलिए इसे बायोअसे भी गौती कहते हैं। 1, क्वालिटी कंट्रोल का मेन पर्पज क्या है? ए, कलर इंप्रूव करना। बी, आइडेंटिटी, प्योरिटी और क्वालिटी एंश्योर करना। सी, टेस्ट बढ़ाना। डी, प्राइस कम करना। 2, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन किस पर बेस्ड होता है? ए, केमिकल टेस्ट्स। बी, बायोलॉजिकल टेस्ट। सी, सेंस ऑर्गन्स, स्मेल, टेस्ट, कलर। डी, क्रोमेटोग्राफी। 3, माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन में क्या स्टडी किया जाता है? ए, ड्रग का प्राइस। बी, सेल्स और टिश्यूज। सी, स्मेल। डी, टेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। टॉपिक, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फार्माकोग्नोसी, डी फार्मा। चलो आज हम फार्माकोग्नोसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या प्लांट्स सिर्फ ग्रो करने के लिए केमिकल्स बनाते हैं या अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी? एक्चुअली प्लांट्स अपनी सेफ्टी के लिए भी कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस बनाते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। डेफिनेशन ध्यान से सुनो, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल नहीं होते, लेकिन उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन देते हैं और एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स, एल्कालॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ओनिल्स, टैनिन्स और रेजन्स। अब बताओ, क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं? आंसर, नहीं, ये मेनली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। 1, एल्कालॉइड्स, सबसे पहले बात करते हैं एल्कालॉइड्स की। एल्कालॉइड्स हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये प्लांट के किसी भी पार्ट में मिल सकते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, आइसोलेशन। इजी एक्सप्लेनेशन, एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, जैसे स्टार्स ऑटो प्रोसेस,
सिंपल लैंग्वेज में समझो, पहले क्रूड ड्रग का पाउडर लेते हैं, फिर उसका फैट रिमूव करते हैं, फिर उससे एल्कलिन बनाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म में अल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फाइनली सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके क्रूड अल्कलॉइड मिल जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स, अल्कलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट्स होते हैं। मायर्स रिएजेंट वाइट या पेल येलो प्रेसिपिटेट देता है ड्रगेंडॉर्फ्स रिएजेंट। ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट वगनर्स रिएजेंट ब्राउन प्रेसिपिटेट। यूजेस एल्कलॉइड्स मेडिसिन में बहुत यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल मॉर्फिन्स पेन रिलीफ एट्रोपाइन, आई में यूज होता है विनाब्लास्टाइन कैंसर ट्रीटमेंट। 2. टर्पेनॉइड्स। अब बात करते हैं टर्पेनॉइड्स की। टर्पेनॉइड्स प्लांट ओरिजिन के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला C5H8N होता है। ये एरोमेटिक और वॉलेटाइल होते हैं और प्लांट्स को उनकी खास फ्रेग्रेंस देते हैं। आइसोलेशन इन्हें स्टीम डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स से आइसोलेट किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, नोलर्स टेस्ट। अगर पिंक कलर आए तो टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं 3। ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड्स को समझते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है। ग्लाइकोसाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो शुगर को नॉन शुगर पार्ट से जोड़ता है। ये बॉडी में जाकर टूटते हैं और एक्टिव कंपाउंड रिलीज करते हैं। ऑकरेंस, ये रूट्स, बार्क और फ्रूट्स में ज्यादा मिलते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स, बोर्न ट्रेगर्स टेस्ट, एंथ्रेकिनोन ग्लाइकोसाइड हेमोलिसिस टेस्ट, सापोनिन ग्लाइकोसाइड लीबरमन बर्चार्ड टेस्ट, स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड यूजेस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, हार्ट के लिए एंथ्रेकिनोन। लेक्सेटिव क्वेश्चन, ग्लाइकोसाइड्स किससे मिलकर बने होते हैं? कमेंट योर आंसर 4। वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स को एसेंशियल ऑयल्स भी कहा जाता है। ये ओडरस सब्सटेंसेस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट हो जाते हैं। ये प्लांट्स को स्मेल्स और फ्लेवर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन सूडन 3 टेस्ट, रेड कलर आए तो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। यूजेस कार्बोनेटिव, एंटीसेप्टिक, डायरेटिक, लोकल एनेस्थेटिक। क्वेश्चन, वोलेटाइल ऑयल्स को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट योर आंसर 5। टनिन्स पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करते हैं। इनका टेस्ट अस्ट्रिंजेंट होता है, मतलब मुंह में सूखापन फील होता है। टेस्ट्स, गोल्ड बीटर्स टेस्ट, जेलेटिन टेस्ट, पेल येलो प्रेसिपिटेट, यूजेस एंटी डायरियल, एंटी ट्यूमर, एंटीडोट। 6. रेजिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होते हैं जो प्लांट्स इंजरी के रिस्पॉन्स में सीक्रेट करते हैं। यूजेस पर्गेटिव, सेडेटिव, लैक्सेटिव। शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 से 3 मार्क्स। 1. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? डिफाइन करो। 2. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मेन फंक्शन क्या है? 3. एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? 4. ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन लिखो। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो फार्माकोग्नोसी का हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट इजी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स को इतनी इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्रूड ड्रग्स का मतलब होता है नेचुरल ड्रग्स जो डायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल्स से मिलती हैं और जिन्हें ज्यादा प्रोसेस नहीं किया गया होता। सिंपल लैंग्वेज में नेचर से डायरेक्ट मिलने वाली मेडिसिन क्रूड ड्रग्स कहलाती हैं। अब हम लैक्सेटिव्स ड्रग्स को समझते हैं। लैक्सेटिव्स वो ड्रग्स होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को ट्रीट करती हैं। एग्जाम्पल याद रखने का इजी ट्रिक, एलो, कास्टोर ओनाइल, इसबगोल और सेना। इनका मेन काम है बाउल मूवमेंट को इजी बनाना। इसकी पूरी टेबल मैंने बना दी है जो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियोटॉनिक ड्रग्स हार्ट के लिए होती हैं। ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर को इंक्रीज करती हैं। एग्जाम्पल डिजिटलिस और अर्जुन। सिंपल याद रखो, कार्डियो मतलब हार्ट और टॉनिक मतलब स्ट्रेंथ। इसकी भी टेबल रन करना। अगला टॉपिक है कार्मिनेटिव्स और जीआईटी। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये ड्रग्स स्टमक और इंटेस्टाइन के लिए यूज होती हैं। ये गैस है इंडाइजेशन ए और पेन को रिड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल्स कोरिएंडर, फेनिल, जिंजर, क्लोव। सिंपल समझो, ये डाइजेशन को स्मूथ बनाती हैं। अब इसकी टेबल को अच्छे से नोट करो।
एस्ट्रिंजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सेसिव सिक्रीशन को रोक देते हैं। एग्जाम्पल आंवला और कैटेचू। अब इसकी टेबल को अच्छे से नोट करो, टेबल को भूलना मत। अब क्विक रिकैप करते हैं। क्रूड ड्रग्स, नेचुरल मेडिसिन्स, लैक्सेटिव्स, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ कार्डियोटॉनिक, हार्ट स्ट्रेंथ कार्मिनेटिव्स, डाइजेशन हेल्प एस्ट्रिंजेंट्स, टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चंस। Question 1. What is a crude drug? 2. What are the sources of crude drugs? 3. Describe the methods of collection of crude drugs. 4. Explain the processing of crude drugs. 5. What are the uses of crude drugs? 6. How to identify and evaluate crude drugs. अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो फार्माकोग्नोसी का हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट इजी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी की थी। आज उसके आगे से स्ट्रेट करते हैं। आपने कभी सोचा है एक ऐसा प्लांट जो आपको नींद भी दे सकता है और एक ऐसा जो आपको पूरी रात जागा कर रख सकता है, एक ड्रग जो पेन मिटा देता है और एक जो दिमाग को इल्यूजन में ले जाता है। सोचो अगर नेचर के पास इतनी पावर है तो फार्माकोग्नोसी कितनी पावरफुल होगी। आज का टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। मैं आपको ये इतना इजी समझाऊंगा कि आप इससे कभी भूल नहीं पाओगे। फार्माकोग्नोसी में हम स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स की, मतलब नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाली मेडिसिन्स, और आज हम फोकस करेंगे उन ड्रग्स पर जो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं, मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अब इससे सिंपल लैंग्वेज में समझो, नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। आपका सोचना, चलना, फील करना सब इस पर डिपेंड करता है। और ड्रग्स क्या करती हैं? कुछ ड्रग्स सिस्टम को स्लो कर देती हैं और कुछ उसे फास्ट कर देती। सिंपल स्लो करने वाली डिप्रेसेंट्स, फास्ट करने वाली स्टिमुलेंट्स। क्लासिफिकेशन, इससे हम 4 मेन कैटेगरीज में समझ सकते हैं। पहला, CNS डिप्रेसेंट्स जो ब्रेन एक्टिविटी को स्लो करते हैं। दूसरा, CNS स्टिमुलेंट्स जो ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। तीसरा, हॉलुसिनेजेंस जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और चौथा, एनाल्जेसिक्स जो पेन को रिड्यूस करते हैं। ड्रग्स एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले ओपियम ये मिलता है पापावर सोमनिफेरम से और इसका पार्ट होता है लेटेक्स। इसका मेन काम क्या है? ये दर्द को कम करता है और नींद लाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है मॉर्फिन। 2 कॉफ़ी। अब आते हैं कॉफ़ी पर। सोर्स है कॉफिया अरेबिका, पार्ट सीड्स, और इसका इफेक्ट ये ब्रेन को एक्टिवेट करता है और अलर्ट बना देता है। इसमें होता है कैफीन। सिंपल लाइन, कॉफ़ी आपको नींद से जगाती है। 3 टी और थाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है कॉफ़ी जैसी। सोर्स कैमेलिया सिनेंसिस। इफेक्ट माइल्ड स्टिमुलेंट, मतलब हल्का सा फ्रेशनेस, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। इसमें भी कैफीन होता है। सिंपल टी लाइट रिफ्रेशमेंट देती है। हेयोसेमस, हेनबेन, हेयोसाइमस एक प्लांट ड्रग है जो हेयोसाइमस नगेर की लीव्स से मिलता है। ये नर्वस सिस्टम पर डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, मतलब ब्रेन एक्टिविटी को स्लो कर देता है। इसमें ह्योसिन और ह्योसामिन होते हैं जो एसिटिलकोलिन को ब्लॉक करते हैं। इससे बॉडी रिलैक्स होती है। इसका यूज होता है मोशन सिकनेस, सेडेशन और स्पैजम्स में। बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना से मिलती है। इसमें एट्रोपिन होता है जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करता है, इसलिए बॉडी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इससे प्यूपिल्स डायलेट होते हैं, हार्ट रेट बढ़ता है और सिक्रीशंस कम हो जाते हैं। छोटी डोज में ये ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और बड़ी डोज में डिप्रेस करता है।
इसका यूज होता है आई टेस्ट, पॉइजनिंग और स्पैजम्स में। एफेड्रा सिनिका के स्टेम से मिलता है। इसका मेन कंपाउंड है एफेड्रिन। ये एक CNS स्टिम्युलेंट है, मतलब ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इससे एयरवेज ओपन होते हैं, हार्ट रेट बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए इसका यूज अस्थमा और कोल्ड में होता है। कोका लीव्स, कोका एरिथ्रोक्सिलम कोका की लीव्स से मिलता है। इसमें कोकेन होता है जो एक पावरफुल NS स्टिमुलेट है। ये डोपामाइन लेवल को बढ़ाता है। इससे यूपोरिया फील होती है, जिससे एनर्जी बढ़ती है और ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी काम करता है। इसका यूज मेनली आई और ENT सर्जरी में एनेस्थीसिया के लिए होता है। तो देखा आपने, नेचर के प्लांट्स डायरेक्टली हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए फार्माकोग्नोसी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये साइंस है नेचर की पावर की। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसे ही इजी टॉपिक्स आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने क्रूड ड्रग्स के अंदर ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और सच कहूँ तो वो काफ़ी फैसिनेटिंग था, कैसे नेचुरल सब्सटेंसेस डायरेक्टली हमारे ब्रेन और नर्व्स को अफेक्ट करते हैं नस। लेकिन आज हम देखेंगे कि यही क्रूड ड्रग्स हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पर कैसे काम करते हैं, फ्रॉम इन्फेक्शन टू डाइजेशन और इवन चाइल्ड बर्थ तक। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी इनटू द रियल पावर ऑफ नेचुरल मेडिसिन्स। सबसे पहले क्विक रिकैप। क्रूड ड्रग्स वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स, एनिमल्स या मिनरल्स से मिलते हैं, और फार्माकोग्नोसी एक ऐसी साइंस है जो इन ड्रग्स के सोर्स, प्रॉपर्टीज और यूजेस को स्टडी करती है। सिंपल वर्ड्स में नेचर की मेडिसिन्स को साइंटिफिकली समझना। अब बात करते हैं एंटीडाइसेंट्रिक ड्रग्स की। ये ड्रग्स डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। डिसेंट्री एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो पेन और सीवियर डायरिया कॉज करता है। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आइपेकाकुआनाहा। इसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है इमेटाइन। ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और स्पेशली अमीबिक डिसेंट्री में काफ़ी इफेक्टिव होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हुपिंग कफ में भी यूज होता है। इसकी पूरी टेबल मैंने बना दी है जो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। अब आते हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स पर। दोनों का काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, लेकिन डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। एंटीसेप्टिक्स लिविंग टिश्यूज पर यूज होते हैं और डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग सरफेस पर। नेचुरल एग्जाम्पल्स देखें तो नीम, टर्मरिक, मेयर और बेंजोइन। नीम एक पावरफुल प्लांट है, ये एंटीसेप्टिक भी है, डिसइंफेक्टेंट भी और एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज भी रखता है। और टर्मरिक जो हर इंडियन किचन में होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। इसकी पूरी टेबल मैंने बना दी है जो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स की। मलेरिया एक सीरियस डिजीज है जो मॉस्किटोज के थ्रू स्प्रेड होती है। इसका एक क्लासिक नेचुरल ट्रीटमेंट है सिनकोना। इसमें होता है क्विनिन। ये मलेरिया पैरासाइट को कंट्रोल करता है और साथ ही ये पेन रिलीफ और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। इसी कैटेगरी में आर्टेमिसिया भी आता है जो मलेरिया के साथ साथ वर्म इन्फेक्शंस में भी यूजफुल है। इसकी पूरी टेबल मैंने बना दी है जो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑक्सीटोसिक ड्रग्स। ये ड्रग्स स्पेशली चाइल्ड बर्थ के टाइम यूज होते हैं। ये यूट्रस में कंट्रैक्शंस इंक्रीज करते हैं जिससे डिलीवरी प्रोसेस स्मूथ होती है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एर्गोट। ये सिर्फ चाइल्ड बर्थ में ही नहीं बल्कि लैक्सेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और इंटरेस्टिंगली ये माइग्रेन ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। इसकी पूरी टेबल मैंने बना दी है जो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं ग्रोथ, इम्यूनिटी और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जैसे विटामिन ए जो विजन और स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नेचुरल सोर्सेज हैं शार्क लिवर ओनेल और कोड लिवर ओनेल। ये डिफिशियंसी को प्रिवेंट करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। इसकी पूरी टेबल मैंने बना दी है जो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। अब लास्ट कैटेगरी एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं
जो बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है डिजेस्शन, जैसे पपाया में पपाइन होता है जो प्रोटीन्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। डीएसटीजे और पैनक्रिएटिन भी डिजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यीस्ट जो बेकिंग और अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है, वो भी एक बायोलॉजिकल एंजाइम सोर्स है। अगर हम ओवरऑल देखें, क्रूड ड्रग्स सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मॉडर्न हेल्थ केयर में भी उनका स्ट्रांग रोल है। वहंत फ्रॉम ट्रीटिंग इन्फेक्शंस टू हेल्पिंग इन चाइल्ड बर्थ टू इंप्रूविंग डाइजेशन, नेचर के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ना किसी फॉर्म में जरूर होता है। थैंक यू। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रूड ड्रग्स कितने पावरफुल और वर्सेटाइल होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर घाव को भरने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, दी सर्जिकल ड्रेसिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उपयोग घाव को ढकने, उसे जल्दी ठीक करने और संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कॉटन की। कॉटन गॉसिपियम प्लांट से प्राप्त होता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन। यह ब्लड, म्यूकस, ईट और पीयूएस को आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ड्रेसिंग में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा कॉटन से गॉज, लेंट और सर्जिकल थ्रेड्स भी बनाए जाते हैं। सिल्क, अब आते हैं सिल्क पर। सिल्क बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त होती है। ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए इसे सूचर्स यानी स्टिचेस के रूप में यूज़ किया जाता है। साथ ही ये फिल्टर मटेरियल क्रन और लिगेचर्स बनाने में भी काम आती है। वुल यानी ऊन, जो शीप जैसे एनिमल्स से मिलती है, ये मोस्टली ह्यू में आसपास देखने को मिल जाती है। इसका मुख्य उपयोग बैंडेजेस बनाने में होता है और ये फिल्टरिंग मटेरियल के रूप में भी काम करती है। रेयॉन, अब बात करते हैं रेयॉन की। रेयॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो प्लांट सेल्यूलोज से बनाया जाता है। यह बैंडेजेस में यूज होता है और ब्लड और पीयूएस जैसे फ्लूइड्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। कैटगट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सर्जिकल कैटगट हुई। कैटगट एक नेचुरल सूचर मटेरियल है जो एनिमल्स की इंटेस्टाइन से बनाया जाता है, जैसे शीप, एक चीये। इसकी खास बात यह है कि यह अब्सॉर्बेबल होता है, यानी बॉडी के अंदर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, लगभग 90 दिनों के अंदर। वो टाइप्स ऑफ कैटगट। कैटगट दो प्रकार का होता है। पहला बॉयलेबल कैटगट, जिसमें पानी नहीं होता, और दूसरा नॉन बॉयलेबल कैटगट, जिसमें पानी या अल्कोहल मौजूद होता है। यूजेस ऑफ कैटगट, इसका उपयोग मुख्य रूप से इंटरनल स्यूटरिंग में किया जाता है, खासकर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और कुछ केसेस में इसे स्किन सूचर्स के लिए भी यूज किया जाता है। सूचर्स और लिगाचर्स, अब समझते हैं। सूचर्स और लिगेचर्स ये स्टेराइल और थ्रेड्स होते हैं, जिनका उपयोग वुंड्स को बंद करने और टिश्यूज को जोड़ने के लिए किया जाता है। एब्जॉर्बेबल सूचर्स, सोपुइस। एब्जॉर्बेबल सूचर्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कैटगट, पीडीएस, मोनोक्रिल और पॉलीग्लैक्टिन। नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स, नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स डिसॉल्व नहीं होते, इन्हें वुंड हील होने के बाद मैन्युअली रिमूव करना पड़ता है, जैसे सिल्क, नायलॉन, कॉटन, लिनन। मेटालिक सूचर्स, तो ये सारे सर्जिकल ड्रेसिंग में उपयोग होने वाले मुख्य मटेरियल्स। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझकर पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही आसान और क्लियर कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी ये टॉपिक आसानी से समझ आ सके। आपने कभी सोचा है कि जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ लैब्स में बनती हैं या नेचर से भी आती हैं? आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम्स वो होते हैं जो एंशिएंट टाइम से यूज़ हो रहे हैं और नेचुरल सब्सटेंसेस पर बेस्ड होते हैं। इनका में फोकस होता है बॉडी और माइंड के बैलेंस पर। इसके मेन एग्जांपल्स हैं आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी,
सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदा की। ये इंडिया का सबसे पुराना मेडिकल सिस्टम है और ये नेचुरल हीलिंग पर बेस्ड होता है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हेल्थ तब मेंटेन होती है जब बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट बैलेंस में होते हैं। अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो डिजीज हो जाती है। आयुर्वेदा में 3 दोषास होते हैं, वत, न, पिटा और काफा। वाता मूवमेंट कंट्रोल करता है, पिटा डाइजेशन और काफा बॉडी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं यूनानी सिस्टम की। ये ग्रीक मेडिसिन से इन्फ्लुएंस्ड है और बॉडी फ्लूइड्स के बैलेंस पर काम करता है। यूनानी सिस्टम में 4 हमर्स होते हैं, ब्लड, फ्लेग्म, येलो बाइल, ए और ब्लैक बाइल। ये सब मिलकर बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, नेचुरल ड्रग्स और ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी यूज़ होती है। अब सिद्धा सिस्टम की बात करें, ये भी एक एंशिएंट इंडियन सिस्टम है जो फिजिकल के साथ स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी फोकस करता है। इस सिस्टम में 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, बर और एथर। इसमें 3 फोर्सेस होती हैं, वातम, पिथम और कफम। ये बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। अब आते हैं होम्योपैथी पर। एंड इसका मेन प्रिंसिपल है लाइक क्योरस लाइक, मतलब जो चीज़ डिजीज कॉज करती है वही स्मॉल डोज में उससे क्योर कर सकती है। मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए इन्फ्यूजन मेथड यूज होता है जिसमें सोकिंग होती है और डिकॉक्शन जिसमें बॉइलिंग की जाती है। तो आज हमने देखा डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। हर सिस्टम का अपना कॉन्सेप्ट है लेकिन सबका मेन एम एक ही है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली आती कहाँ से हैं? थोड़ा सोचिए, कमेंट में ज़रूर बताना। आंसर है प्लांट्स। यस स्टूडेंट्स, बहुत सारी मेडिसिन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स से ही आती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स वो होते हैं जो डिजीजेस को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं और एरोमेटिक प्लांट्स वो होते हैं जिनमें फ्रेग्रेंस होती है क्योंकि उनमें इसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे तुलसी, नीम, मिंट, रोज। अब एक क्वेश्चन, क्या ये प्लांट्स सिर्फ मेडिसिन में ही यूज़ होते हैं? सोचो सोचो, चलो मैं ही बता देता हूँ। नहीं, इनका यूज़ बहुत सारे सेक्टर्स में होता है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धू, यहाँ डायरेक्ट प्लांट्स यूज होते हैं। एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी प्लांट से एक्टिव कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जैसे मॉर्फिन ओपियम से आता है और क्वाइनाइन मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। यानी मॉडर्न ड्रग्स भी प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की। हर्बल कॉस्मेटिक्स आजकल बहुत ट्रेंड में है। फेस वॉश, क्रीम्स, शैम्पूज, इन सब में एलोए वेरा, नीम, टर्मरिक यूज होता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में एरोमेटिक प्लांट्स का मेन रोल होता है। रोज ऑयल, सैंडलवुड, लेवेंडर, ये सब परफ्यूम्स में यूज होते हैं। एक क्वेश्चन, आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताना। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में भी ये प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फार्मर्स मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया इन प्लांट्स को एक्सपोर्ट भी करता है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म, एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इसका मतलब होता है किसी प्रोडक्ट की एबिलिटी कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कितना सेल हो सकता है और ये डिपेंड करता है डिमांड, क्वालिटी और प्रोडक्शन पर। इंडिया मेडिसिनल प्लांट्स में रिच है, इसलिए इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई है। इंडिया इन्हें यूएसए, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सन और चाइना तक एक्सपोर्ट करता है। अब स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजर एक्सपोर्टेड प्लांट्स ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ईसबगोल, प्लांटागो ओवेटा, लैक्सेटिव, मिंट, मेंथा आर्वेंसिस, एसेंशियल ऑयल और फ्लेवरिंग,
टर्मरिक, कुरक्यूमा लोंगा, एंटी इन्फ्लेमेटोरी. नीम, अजादिराक्टा इंडिका, एंटी बैक्टीरियल. अलोए वेरा, अलोए बार्बाडेंसिस. स्किन केयर, रोज, रोसा दामासेना. परफ्यूम इंडस्ट्री, सैंडलवुड, संतालुम एल्बम. फ्रैग्रेंस, अश्वगंधा, विथानिया सोमनिफेरा. स्ट्रेस कंट्रोल, अडेप्टोजन, कार्डमम. एलेथरिया कार्डामोमम, फ्लेवरिंग एजेंट. तुलसी, ओसिमम सैंक्टम, इम्यूनिटी बूस्टर. एक क्विक क्वेश्चन, तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है और नीम किस यूज के लिए फेमस है? कमेंट में जरूर बताना. और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, लेकिन इंडिया भी एक मेजर एक्सपोर्टर है. सो स्टूडेंट्स, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमी और एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स. एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आपने कभी सोचा है जो फूड हम डेली खाते हैं, क्या वो सिर्फ पेट भरने के लिए होता है या वो मेडिसिन की तरह भी काम कर सकता है? आंसर कमेंट में बताना. सोचो ज़रा. एक्चुअली कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिशन भी देते हैं और डिजीजेस को प्रिवेंट भी करते हैं. इन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स. सिंपल लैंग्वेज में न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब फूड जो मेडिसिन की तरह काम करे. एग्जाम्पल समझते हैं. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फिश ऑयल में मिलते हैं. विटामिन डी, विटामिन सी जो ऑरेंज और लेमन में मिलता है. अब सवाल ये है, ये बॉडी में काम क्या करते हैं? सबसे पहले हार्ट हेल्थ. ओमेगा 3 ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. नेक्स्ट, बोन हेल्थ. कैल्शियम और विटामिन डी बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हल्दी जो हम डेली यूज करते हैं, क्या वो सिर्फ कलर के लिए होती है? आंसर कमेंट में बताना. नहीं, उसमें करकुमिन होता है जो ब्रेन और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है. और डायबिटीज में भी कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो सिंपल फूड आइटम्स भी कितने पावरफुल हो सकते हैं. अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की. सबसे पहले एक क्वेश्चन, फ्री रेडिकल्स का नाम सुना है कभी? आंसर कमेंट में बताना. फ्री रेडिकल्स हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं और इसी डैमेज से डिजीजेस डेवलप होती हैं. तो यहाँ कौन बचाता है? एंटीऑक्सीडेंट्स. ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. एग्जाम्पल्स, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक. इनके बेनिफिट्स क्या हैं? ये कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, स्किन को सन डैमेज से बचाते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और ब्रेन को भी सेफ रखते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गुट में रहते हैं. एक सवाल, क्या सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं? आंसर कमेंट में बताना. नहीं, कुछ बैक्टीरिया आपके दोस्त होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम. ये डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, डायरिया को प्रिवेंट करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. अब आता है प्रीबायोटिक्स. सिंपल समझो, प्रोबायोटिक्स बराबर गुड बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक्स बराबर उनका फूड. एग्जाम्पल्स, गार्लिक, अनियन, बनाना. बेनिफिट्स, बेटर डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. तो स्टूडेंट्स, अब आपको गुड हेल्थ क्लियरली समझ आ रही होगी. अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की. फाइबर्स क्या होते हैं? ये प्लांट बेस्ड चीज़ें होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती. दो टाइप्स होते हैं. सॉल्युबल फाइबर जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है. इनसोल्युबल फाइबर जो स्टूल का बल्क बढ़ाता है और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है. और अब आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बॉडी खुद से सब न्यूट्रिएंट्स बना सकती है? आंसर कमेंट में बताना.
नहीं, सो ओमेगा 3 बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसीलिए डाइट से लेना पड़ता है। टाइप्स ALA, EPA, DHA सोर्सेज फिश, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स। बेनिफिट्स हार्ट हेल्थी, ब्रेन शार्प और इन्फ्लेमेशन कम करता है। नेक्स्ट स्पिरुलिना, ये एक सुपर फूड है। इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल सब होते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। अब कैरोटीनॉइड्स, ये नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ब्राइट कलर देते हैं, जैसे बेटा कैरोटीन, लाइकोपीन। बेनिफिट्स आई हेल्थ इंप्रूव, स्किन प्रोटेक्शन, हार्ट हेल्थ सपोर्ट। अब सोयाबीन, ये प्रोटीन का रिच सोर्स है और हार्ट और बोन्स दोनों के लिए अच्छा है। लास्ट गार्लिक, एक सिंपल किचन इंग्रेडिएंट पर पावरफुल मेडिसिन। ये ब्लड प्रेशर कम करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा? फूड सिर्फ एनर्जी नहीं देता बल्कि बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। यही है न्यूट्रास्यूटिकल्स का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम के लिए। क्या अवैन के आपने कभी सोचा है जो कॉस्मेटिक्स हम डेली यूज़ करते हैं क्या वो नेचुरल भी हो सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 हर्बल कॉस्मेटिक्स, जो सेफ भी होते हैं और इफेक्टिव भी। हर्बल कॉस्मेटिक्स का मतलब होता है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो स्किन और हेयर को इंप्रूव करते हैं, जैसे एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल। इनकी खास बात क्या है? आपको क्या लगता है क्यों लोग हर्बल प्रोडक्ट्स चूज करते हैं? अपना आंसर कमेंट में लिखो। अब बात करते हैं एलोवेरा की। एलोवेरा लीव्स से जेल निकाला जाता है जिसमें बार्बोलिन और एलोइन होते हैं। इसका प्रिपरेशन भी इंटरेस्टिंग है, कल्चरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन और फॉर्मुलेशन। आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? कमेंट में बताना। एलोए वेरा के यूजेस, बर्न्स, एक्नी, रिंकल्स, सब में यूजफुल है। अब आगे बढ़ते हैं आलमंड ऑयल की तरफ। ये आलमंड्स के सीड से मिलता है और न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है। ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हेयर को स्ट्रांग बनाता है। आपने आलमंड ऑयल कहाँ यूज़ किया है? हेयर या स्किन? कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं लेवेंडर ऑयल की। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी सूदिंग होती है कि स्ट्रेस भी कम हो जाता है। आपको क्या लगता है? इसलिए इसे अरोमाथेरेपी में यूज़ किया जाता है। लेवेंडर ओनेल वॉन्ड्स को हील करता है, और एंटीसेप्टिक भी होता है। अब आता है ऑलिव ऑयल। ये ड्राइनेस को रिड्यूस करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। ओनेल एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है। अब आगे बढ़ते हैं रोजमेरी ऑयल की तरफ। ये हेयर ग्रोथ को इंप्रूव करता है और डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है सैंडलवुड ओनायल। ये पिंपल्स को रिड्यूस करता है और स्किन को कूल करता है। आपने सैंडलवुड कभी यूज किया है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करो। अब एक क्विक रिवीजन। हर्बल कॉस्मेटिक्स नेचुरल होते हैं, सेफ होते हैं और मल्टीपल यूजेस होते हैं। आपको कौन सा हर्बल प्रोडक्ट सबसे बेस्ट लगा? कमेंट में जरूर बताना। फाइनल क्वेश्चन, आपको क्या लगता है फ्यूचर में हर्बल कॉस्मेटिक्स का डिमांड बढ़ेगा या कम होगा? आंसर कमेंट में लिखो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक हर्बल कॉस्मेटिक्स और था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है प्लांट्स में प्रेजेंट केमिकल कंपाउंड्स का स्टडी करना। अब आप सोच रहे होंगे प्लांट्स को क्यों स्टडी करते हैं? तो रीजन सिंपल है,
प्लांट्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद केमिकल्स बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया से बचने के लिए, इंसेक्ट्स से बचने के लिए और एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स से बचने के लिए। और वही केमिकल्स हम मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे अल्कलॉइड्स जो पेन रिलीफ में यूज होते हैं और टर्पेनॉइड्स जो एसेंशियल ऑयल्स में मिलते हैं। तो अब बात करते हैं फाइटोकेमिकल्स की। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? ये नेचुरल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स में मिलते हैं। एग्जाम्पल्स अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, क्रूइज और टर्पेनॉइड्स। तो जब भी आप कोई प्लांट देखो, यह याद रखना कि उसके अंदर बहुत सारे यूजफुल केमिकल्स होते हैं। सब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मेडिसिनल यूजेस और बायो अवेलेबिलिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इन सबको एक एक करके इजी वे में समझते हैं। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स। यहां हम ये देखते हैं कि प्लांट में कौन से एक्टिव केमिकल्स प्रेजेंट हैं, जैसे एल्कलॉइड्स पेन रिलीफ देते हैं, ग्लाइकोसाइड्स हार्ट पर इफेक्ट करते हैं। सिंपल बात, कौन सा प्लांट किस काम का है। नेक्स्ट स्टेप, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। इसमें हम प्लांट से केमिकल्स निकालते हैं। डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, जैसे मैसरेशन, इन्फ्यूजन और सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के बाद हम डिजायर्ड कंपाउंड को अलग करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, प्लांट से मेडिसिन निकलना। अब आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। यहाँ हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, मतलब एटम्स कैसे अरेंज हैं, मॉलिक्यूल का डिजाइन कैसा है। सिंपल, मेडिसिन का डिजाइन समझना। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अब हम कंफर्म करते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। इसके लिए टेस्ट्स यूज होते हैं, जैसे ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट अल्कलॉइड्स के लिए। सिंपल, ये केमिकल एक्चुअली है क्या। अब आता है प्यूरिफिकेशन। इस स्टेप में हम इंप्यूरिटीज रिमूव करते हैं, क्योंकि मेडिसिन तभी सेफ होती है जब वो प्योर हो। क्रोमैटोग्राफी टेक्निक यूज होती है। सिंपल, गंदे से साफ मेडिसिन बनाना। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यहां हम देखते हैं कि ये केमिकल बॉडी में क्या इफेक्ट करता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल या एंटी कैंसर। सिंपल, बॉडी पर इसका क्या इंपैक्ट है। नेक्स्ट, मेडिसिनल यूजेस। इस स्टेप में हम फाइंड करते हैं कि ये ड्रग किस डिजीज में यूज होगी। जैसे नीम एंटीबैक्टीरियल है, एलोवेरा स्किन के लिए यूज होता है। सिंपल, ये मेडिसिन कहाँ यूज होगी। अब आता है बायो अवेलेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कितनी ड्रग एक्चुअली ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचती है, क्योंकि जो ड्रग हम लेते हैं वो पूरी की पूरी काम नहीं करती। सिंपल, कितनी मेडिसिन एक्चुअली काम करेगी। एट लास्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका मतलब होता है बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। इसको हम ADME कहते हैं। सिंपल ट्रिक्स, ड्रग की जर्नी बॉडी के अंदर। तो चलिए एक छोटा सा कंक्लूजन करते हैं। प्लांट्स मेडिसिन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। प्रॉपर फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से सेफ और इफेक्टिव ड्रग्स मिलती हैं, और ये टॉपिक फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही। अगर आपको ये समझ आया हो तो एक बार रिवाइज जरूर करना, और याद रखो कॉन्सेप्ट्स तब इजी होते हैं जब आप उन्हें समझकर पढ़ते हो।